Hello guys, how are you? I hope you are fine because I am not. Uh, Moving forward with the last topic, we have discussed about the human capital formation. Now we are going to discuss about the rural development. So, when we talk about the rural development, that image in on your screen says everything that this is हमारे सपनों का भारत. That is called every facility is there in the rural area, which is a ideal model for the every kind of imagination that there is an airport, there is a railway connectivity is there, there are proper means of the aggregation, irrigation in the agricultural facilities are there, proper housing, proper water, proper sanitization, proper electricity, and proper development of the infrastructure is there. So rural development in your syllabus, we are going to talk about the what does it mean by rural development and what are the major challenges in that development and what are the solutions, what are the steps which have already opted by the government to develop the rural areas and what are the impacts of that. तो हम समस्या से स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसके सॉल्यूशंस तक और एक्चुअल सॉल्यूशंस का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उन बारे में डिस्कशन करेंगे. Now that rural development, the first thing is what are the challenges. The ultimate challenge when it comes to rural development, there are four kind of challenges which we are going to discuss in this particular chapter, and all these four challenges are classified into two categories. First one is the lingering challenges and the second one is the emerging challenges. कहने का मतलब ये है वो प्रॉब्लम्स जो कि बरसों से चलती आ रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही हैं, और अब वो प्रॉब्लम्स जो कि आने वाले फ्यूचर में रूरल डेवलपमेंट में हमको आने वाली है. तो कुछ ऐसी समस्याएं जो कि इतिहास से चली आ रही हैं, पास्ट से हमारे रूरल एरिया को परेशान कर रही हैं और अभी तक भी उनका पूरा सोल्यूशन हम नहीं कर पाए हैं एज एन इकोनॉमी. और दो समस्याएं हम ऐसे डिस्कस करेंगे विच आर गोइंग टू बी द अपकमिंग चैलेंजेस इन द फ्यूचर. सो नाउ the previous two issues are the rural credit and the rural marketing. ये बरसों से है, ये स्टार्टिंग से हमारी हमारी कंट्री के एग्रीकल्चरल सिस्टम और रूरल एरिया के जो बिजनेसेस हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनको आसानी से बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं मिलता. दूसरा, रूरल एरिया के अंदर जो मार्केटिंग का सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज़्यादा नहीं है, जो बाहर के बायर्स हैं उन लोगों की रूरल एरिया तक अप्रोच नहीं है, एक्सेस नहीं है, रूरल एरिया के सेलर्स के पास इतना बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है कि वो बाहर जाके अपना प्रोडक्ट बेच सके. और जो अपकमिंग चैलेंजेस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल लाइवलीहुड और द डेवलपमेंट, कि किस तरीके से रूरल एरिया के एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सिस्टम को इतना बेहतर बनाया जा सके कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे. And the other upcoming problem is organic farming, because nowadays organic farming is of huge demand, but उसके लिए जो infrastructure facility support government part पे या individual part पे skill और knowledge चाहिए उसकी बहुत कमी है. So we will discuss all these four. आगे हम पढ़ेंगे इनको, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करते हैं. हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, हम एक्शन प्लान भी पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम जो है सुलझा सकते हैं. what may be the solutions and what are the solutions which have already implemented by the government. So the challenges of the rural credit, first problem and the lingering challenges. देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे. Rural credit is actually classified into three categories. First one is the short term, second one is the medium term, and then long term credit. You can see the image, that image will remain in your mind for a long period of time, that
This is a heavy weight loan which have to be borne by the agriculturalist, क्योंकि हमारा जो रूरल एरिया है ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इसलिए ज़्यादातर बातें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। Now, short-term credit जो होता है, that is for the purchase of the seeds, fertilizers, pesticides, insecticides, and many other things like payment of the electricity bills. Small and marginal farmers जो होते हैं उनके पास इतना रेवेन्यू, रैकरिंग रेवेन्यू नहीं होता, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन चीज़ों को आसानी से रेगुलर पे कर पाए, क्योंकि वो फसल जब आती है, फसल जब बेचते हैं तब उनके पास पैसा आता है। Then there is a medium term credit. That medium term credit we require for the purchase of the machinery, construction of the fences. खेत के चारों तरफ कुछ न कुछ बाड़ लगानी पड़ती है, बाड़ा बंदी उसको बोलते हैं। अगर खेत में कुआं खुदवाना है तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये जो अमाउंट होता है that is for the period of 12 months to 5 years, short term up to the 6 to 12 months के लिए होता है। Then there is a long term credit which we require to purchase an additional land, अगर कोई एक्स्ट्रा जमीन खरीदना चाहता है, एग्जिस्टिंग लैंड में परमानेंट नेचर का कोई डेवलपमेंट आप कराना चाहते हो, बहुत सारी मिट्टी आप उसमें डलवाना चाहते हो या बहुत ज्यादा मिट्टी आप उसमें से निकलवाना चाहते हो, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज के लिए आपको 5 to 20 ईयर्स के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। नाउ द बेसिक प्रॉब्लम इज that the short term, medium term and long term credits are not that much easily available in the rural area. Even if they are available, there is no guarantee system of the repayment. So even banks are suffering from the heavy NPAs. So there is no specific management with respect to the rural credit. Although government have tried their best, देखते हैं क्या क्या बातें गवर्नमेंट ने, क्या क्या चीजें सरकार ने हमारे लिए की है। दो तरीके के सोर्सेज हैं फॉर द रूरल क्रेडिट। गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश्ड टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज for the agricultural credit. One is institutional sources, which is developed specifically by the government support, and there is a non-institutional sources which is developed among the people on the basis of their social connections and the informal relations. Now, established by the government, also known as formal credit source भी हम इसको बोलते हैं, aims to provide credit at the cheap rate of interest. जबकि हम अगर informal और non institutional source की बात करें तो हम उसको informal भी बोलते हैं, और ये mutual societal values के basis पर develop किया गया system है, but यहाँ पर interest rate बहुत ज़्यादा हाई होती है। हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, जो वो साहूकारी सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम हुआ करता था अंग्रेजों की टाइम पे, दैट वाज द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो वैसा का वैसा ही एक पैरेलल स्ट्रक्चर आज भी हमारे यहाँ पे चलता है, ऑल्दो अब उतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है जितना अंग्रेजों के टाइम पर हुआ करता था। सो वी हैव sources for the rural credit. One is institutional, another one is non-institutional. Non-institutional specifically covers the landlords, village traders, money lenders, वही जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे जो है लोगों को देते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज 93% of the Indian rural credit, you need to focus on that part very specifically. 93% of the total borrowings of the farmers in the beginning of the first year plan, which we have established in the year 1951-55 का जो हमारा पहला 5 year plan था, उस वक्त 93% of the rural credit was through the non-institutional sources. That data is very important because further we are going to discuss that now institutional sources have captured the majority of that amount, and the non-institutional part is actually limited up to a certain extent. Now, what are the institutional sources जो कि अवेलेबल हैं? गवर्नमेंट से आप एग्रीकल्चरल सपोर्ट या रूरल क्रेडिट ले सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको है सपोर्ट करने के लिए, देयर आर कमर्शियल बैंक्स व्हिच आर एक्चुअली हेल्पिंग फॉर द रूरल एरिया बिजनेसेस एंड द एग्रीकल्चरल स्पेशली. The regional rural banks are established by the government with the help of NABARD and with the help of Reserve Bank of India. रीजनल रूरल बैंक्स का मेन काम ही यही होता है, इनकी ब्रांचेज आपको रूरल एरिया में ही मिलेंगी, अर्बन एरिया में नहीं मिलेंगी. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नाम बता देता हूं, जैसे बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इट इज द नेम ऑफ अ बैंक.
Baroda Kshatriya Gramin Bank. It is a branch of Bank of Baroda. It is developed and promoted by the Bank of Baroda with the help of NABARD. तो इस पर्टिकुलर बैंक का काम ही यही है, वो जिस एरिया में इसकी ब्रांच है वहाँ के किसानों को, वहाँ के जो छोटे बेचारा ठेला लगाकर सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें जिनको हम कहते हैं कि गुमटी लगा के अपना बिजनेस करते हैं या गली गली जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, उन लोगों को बिना कोई गारंटी, बिना कोई इनकम टैक्स का रिटर्न या बिना कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट के फंड्स अवेलेबल कराते हैं ताकि ये लोग अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए. Now, institutional sources at the time of 5-year plan, they holds only 7% of the market at the first year plan, जो 1951-55 का दौर था, सिर्फ 7% मार्केट जो था क्रेडिट का वो institutional sources के हाथ में था. But presently the share actually have increased over 66%. Can you believe that? Now, if this is 66%, means only 34% market is captured by the non-institutionals. So majority of the market, I must say 3/4 of the market is actually developed. 3/4 of the market is actually controlled, captured and developed by the institutional sources when it comes to rural development. Now, इसमें भी एक क्लासिफिकेशन है. इस 66% में से भी 15% जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का है. अबाउट 75% का जो कंट्रीब्यूशन है वो कमर्शियल बैंक्स का है. एंड जो रिमेनिंग 10% बच जाता है वो रीजनल रूरल बैंक्स की तरफ से सपोर्ट आता है. रीजनल रूरल बैंक्स का डेवलपमेंट इतना ज्यादा अभी नहीं हो पाया है क्योंकि उस एरिया के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का मिलना इतनी डिमांड भी नहीं है. जब कमर्शियल बैंक्स आजकल हर गांव तक पहुंच गए हैं, इसलिए रीजनल रूरल बैंक्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अब नहीं बचा है. तो हम कह सकते हैं दैट इंडिया का जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स मार्केट है व्हेन इट कम्स टू रूरल डेवलपमेंट, इट इज अ मल्टी एजेंसी सिस्टम. एक ही गांव में, एक ही जगह पे आपको रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए कमर्शियल बैंक मिल जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स मिल जाएंगे, यू विल हैव कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड देयर इज आल्सो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर एक्चुअली डायरेक्टली कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय द नाबार्ड, जो कि किसानों की जमीनों के डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरिया में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए इनके लिए फंडिंग्स अवेलेबल करवाते थे लो इंटरेस्ट रेट पे. Then there are certain brief descriptions about all these institutional sources. First one is cooperative credit society. I tried my level best to summarize it in that particular chart. That institutional sources of the credit, first one is the commercial bank, provides loan for the all agricultural purposes for short term, medium term and long term. आपको अभी अपन ने 3 कैटेगरी के फंड्स की रिक्वायरमेंट देखी थी रूरल डेवलपमेंट के लिए. तीनों ही कैटेगरी में कमर्शियल बैंक से आपको पैसा आसानी से मिल जाएगा. Then there is regional rural banks. They are open where there are no banking facility. तो याद रखना, रीजनल रूरल बैंक्स को अब सिर्फ उन्हीं एरियाज में प्रायोरिटी दी जाती है जहां कोई कमर्शियल बैंक ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है. अल्टीमेट टारगेट क्या है? छोटे फार्मर्स को सपोर्ट करना. आप सोचिए, एक जगह जहां पे कोई बैंक ही नहीं है, इसका मतलब वहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का क्वांटम बहुत कम है, बहुत छोटा है. इसलिए उस एरिया में रीजनल रूरल बैंक्स की ब्रांचेस को ओपन किया जाता है. Then there is cooperative credit societies. Ultimately cooperative credit societies का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मेंबर्स से कलेक्शन लेना और फिर मेंबर्स को ही फाइनेंशियल सपोर्ट करना. तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स को ऑफर की जाती है. इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और फार्मर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यू विल get the loan at a very low rate, at the rate like 4%, 3%, 5% पे आपको बड़ा आसानी से लोन मिल जाता है. Then there is a system of self-help groups. What does it mean by self-help groups? Self-help groups का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे व्यापारियों ने मिलके, फॉर एग्जांपल आप एक छोटे से गांव में हैं, उस छोटे से गांव में कुल 40-50 दुकानदार हैं. उन 40-50 दुकान वालों ने आपस में मिलके एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने ये कमिटमेंट लिया कि we will have the collection of 50 rupees per day.
₹50 पर डे के हिसाब से हम कलेक्शन लेंगे और साल में 300 दिन का कलेक्शन हम करेंगे, तो वन पार्टिसिपेंट इज एक्चुअली गिविंग 15,000 पर एनम इन दैट पर्टिकुलर फंड। एंड अगर 50 लोग हैं तो आप समझ सकते हैं देयर विल बी अ collection of 7,50,000 rupees in a year. So if in, अब सब 50 लोगों को तो हेल्प की जरूरत पड़ती नहीं है, अगर मान लीजिए उनमें से 5 लोगों को भी 1-1 लाख रुपए की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो out of that 7,50,000 those 5 peoples will be offered a credit at a very low rate. उनको मदद की जाएगी और उनसे इंटरेस्ट रेट बहुत कम उसमें लिया जाएगा। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के, बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सेटअप के, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर ही आपस में एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। Still, let's have a brief academic discussion from this content because there is certain data which we need to consider. Now, cooperative societies actually consider 16 to 70% of the rural credit flow nowadays. The major advantages or the major role, I must say, of the societies are to ensure the timely and rapid flow of the credit. किसान को जल्दी समय पे, क्योंकि जब उसको फसल करनी होती है उसी वक्त उसको पैसा चाहिए होता है, तो उसको उस वक्त पैसा अवेलेबल होना जरूरी है। मनी लेंडर्स जो कि हेवी इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं, उनको गायब करना मार्केट से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं लोगों से, इंटरेस्ट का पैसा बहुत मांगते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। देन क्रेडिट फैसिलिटीज़ को हर एरिया तक पहुंचाना, दैट्स द ऑब्जेक्टिव विच गवर्नमेंट used to have when they established the system of cooperative credit societies. Then government through these credit cooperative societies ensures that the adequate credit is available for the development and the implementation of the policies and the projects of the government. गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर एरिया में सफिशिएंट फंड्स हों, इसको इंश्योर करने का काम जो है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू गवर्नमेंट करती है। Then there is the State Bank of India and other commercial banks. I think everyone knows everything about the State Bank of India. 1955 में इसको बनाया गया, इसका भी फोकस रूरल क्रेडिट पे है, ऑल्दो धीरे धीरे फिर ये अर्बन एरिया का बैंक बन के रह गया, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 was to help the rural areas in the rural credit. Now this prompt then to support the State Bank of India, there are certain banks which were nationalized in the 1969. There are so many banks which were nationalized, around 14 to 15 banks were nationalized in 1969 to support the State Bank of India in terms of credit creation. And obviously बात है, when it comes to credit creation, rural credit is also part of that credit creation. Then regional rural banks and the land development banks. Regional rural banks and the land developments were set up for the prompt credit supplies. Ultimately, specific organizations बनाए जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि वो किसानों को, रूरल एरिया में बिजनेस कर रहे छोटे व्यापारियों को जरूरत पड़ने पर और डिमांड करने पर तुरंत लोन ऑफर करें। मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 24 hours, 48 hours, they have to sanction that loan. And they settled the branches of that land development bank and the regional rural banks at the very minute level of the society, like villages. एक सेंट्रल बैंक बनाया उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टू हेल्प द फंक्शंस ऑफ दोज टाउनिश और द विलेज एरिया ब्रांचेस। एक बेहतर सिस्टम डिजाइन किया था, बट इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया जितना बेहतर सिस्टम था। और इस रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के डेवलपमेंट और काम को सपोर्ट करने के लिए देयर इज एन इंस्टीट्यूट जो कि बनाया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। सो नाबार्ड वाज द सेटअप जो कि
रूरल क्रेडिट और रूरल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिकली डेवलप किया गया। इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट और मेंटेन करने के लिए जो सीनियर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड का रोल यही है, रूरल क्रेडिट, रूरल मार्केटिंग, रूरल फंडिंग, रूरल बिजनेस सपोर्ट एंड रूरल एग्रीकल्चरल सपोर्ट के लिए ये पॉलिसी मेकिंग से लेके, प्लानिंग से लेके, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन तक हर एक्टिविटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है। इट इज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी। जिस भी रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक को रूरल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग चाहिए, नाबार्ड अवेलेबल कराता है। क्रेडिट रिकवरी एंड प्रॉपर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैंकिंग सिस्टम के साथ मिलके प्रॉपर सिस्टम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड क्रेडिट रीस्ट्रक्चरिंग ये बनाता है कि किस तरीके से लोगों को लोन की पेमेंट और लोन लेने और देने दोनों के लिए एक्टिव किया जाए, कैसे उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। उसके लिए ये उस एरिया के रीजनल बैंक्स के साथ में, कमर्शियल बैंक्स के साथ में मिलके जो है काम करते हैं। देन टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, किसी भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फंडेड हो, चाहे कोई कमर्शियल बैंक हो, उनके साथ रूरल फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज में कॉपरेट और कोऑर्डिनेट करना नाबार्ड की जिम्मेदारी में था। एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रूरल क्रेडिट सिस्टम इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड। अल्टीमेटली रूरल एरिया में ग्रोथ, डेवलपमेंट और रूरल क्रेडिट को प्रॉपरली सर्कुलेट कराना इज द मेन एम ऑफ द नाबार्ड। Then there is the RBI and the rural credit connection. RBI was established in the 1935, and we could imagine that in the era of 1935, there was no urbanization in the country. So end of the day, the ultimate support of the Reserve Bank of India gets diverted towards the agricultural sector, because at that particular point of time agriculture was the main source of income for the country. The highest contribution in the GDP was of the agricultural sector. So what was the objective of the Reserve Bank of India, and what are the activities which were done by the Reserve Bank of India? Reserve Bank of India actually developed the system of primary cooperative credit society as well as the land development banks. और उन्होंने क्या किया, दे रीफाइनेंस दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था उसको रीफाइनेंस करने का काम, कि आप तो प्रोडक्ट बनाइए, बायर नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट खरीदेगी, और उसके लिए गवर्नमेंट को जो फंडिंग अवेलेबल कराने का काम था वो आरबीआई ने किया। देन डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, अभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के हमने नाम पढ़े वो सबके सब बाय दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंडेड है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डेवलप किए गए हैं। शॉर्ट टर्म एज वेल एज द लॉन्ग टर्म फंडिंग जो है क्रेडिट सिस्टम को, स्पेशली कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को आरबीआई ने डायरेक्ट पैसा दिया और कोऑपरेटिव क्रेडिट्स के थ्रू रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाया। लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो स्टेट पार्टनरशिप के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किए, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स अवेलेबल करवाए और उनको कहा कि आप अपने एरिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू इस पैसे को डिस्बर्स कीजिए, ताकि लोग जो है रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट करके उस एरिया को प्रमोट और डेवलप करें। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अल्टीमेटली आप समझिए at that particular point of time when Reserve Bank of India was playing an active role in the development of the economy or in the development of the rural area, they were directly in connection with the cooperative society, because at that particular point of time commercialized banking was not that much famous. So everything which Reserve Bank of India have done for the rural development, they have done it through the cooperative societies. Then Reserve Bank of India have actually conducted many surveys and the research on the rural area credit and rural area credit patterns and the payback pattern, पैसा वापस वो किस तरीके से करते हैं उस पर। देन देयर इज अ हेल्पिंग बैंक ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम जो कि चलाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने।
हेल्पिंग बैंक ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके जिस भी बैंक ब्रांच को रिकवरी में या इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस इन द रूरल क्रेडिट दिक्कत आती थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स देने की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग देने की बात हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात हो। इन एवरी टर्म Reserve Bank of India supports that particular organizations directly. Guidance to all concerned on the matters related to rural credit. Obviously, बात है, Reserve Bank of India is the apex institution of the country. When it comes to apex institution of the country, that apex institution always available to offer consultancy or the advice in terms of every kind of credit, which includes the rural credit also. Now, रूरल बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम थोड़ा बहुत उसकी गहराई, उसकी बात को भी समझें। एक्सपेंशन हैज बिकम सिग्निफिकेंटली particularly since nationalization of the major commercial banks in the 1969. तो you may focus on that particular term, that after the nationalization of the certain banks, the concept of rural banking and the concept of rural credit is actually rocketed. उसके पहले बड़ा धीमे चल रहा था काम, बट 1969 के बाद रूरल एरिया का क्रेडिट भी एक तरीके का बिजनेस ऑप्शन बन के नजर आया सामने। तो हर तरीके का बैंक, हर तरीके का छोटा बड़ा बैंक अब गांवों में आपको अपनी ब्रांच लेके देखा हुआ मिल जाएगा। सो एट द बिगिनिंग बैंकिंग वाज द part of the urban area, or it is treated that the अमीर आदमी ही बैंक जाता है। But after 1969 nationalization, the things have changed, जिसका आज आपको नज़ारा आसानी से देखने को मिल सकता है। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? There are so many self-help groups, SHGS is a self-help groups, and the microcredit programs which have transformed the rural credit concept in this country. छोटे छोटे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए और बहुत सारे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए गांवों में, अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज को लेके। आप इस इमेज से बहुत बेहतर समझ पाएंगे। these women and these girls are actually making masks. So if these kind of organizations जो कि बहुत ही छोटा काम कर रहे हैं अपने एरिया में, बहुत मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ में, गवर्नमेंट इनको फंडिंग्स अवेलेबल कराने लग गई, बैंक्स इनको फंड्स देने लग गए कि आप तो बिजनेस कीजिए, आपका प्रोडक्ट हम सेल भी करवाएंगे। सो नॉट ओनली द क्रेडिट सपोर्ट, ऑल्सो द मार्केटिंग सपोर्ट वाज आल्सो अवेलेबल देयर आफ्टर द 1969 nationalization of the banking system. Why it's happened? Because now there is a competition. नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपके जितने ज्यादा होंगे, आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स जितने ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा क्रेडिट का रोटेशन, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट का रोटेशन, उतना ही ज्यादा फंड्स का रोटेशन आप अपने बिजनेस में क्रिएट कर सकते हो। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स का सबसे बड़ा रोल है, जो कि they actually developed a thrift का मतलब होता है habit of saving in the rural areas, because when micro credit programs and the self help groups are offering certain types of incentives to you, like you just pay 10 rupees a day to me, that means you are paying 300 rupees in a month. When you are paying 3600 rupees in a whole year, we will pay you back 5000 rupees at the end of the year. So that's great. There is a growth of 1400 rupees in a year. So these kind of micro credit programs have developed the concept of rural credit drastically. Then development of NABARD, we have already talked about the NABARD. NABARD have changed everything. NABARD have played the lead role when it comes to the development of the economy and the development of the market, development of the rural credit, marketing concept of the rural area and rural development. So NABARD have played an active role from the front. That's why that self-help group, that commercial banking system, that regional rural banks, that cooperative society system, each and every fundamental aspect of the rural development have gained confidence now then.
बिकॉज उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो नाबार्ड हमारे लिए खड़ा है, हमको फाइनेंशियली चिंता करने की जरूरत नहीं है. There is a term called Kisan credit card. You need to remember this very effectively. 4% का interest rate लगता है. It's a very low interest rate. That is KCC. इसको बड़ा बहुत फेमस है ये हमारे यहाँ पे रूरल क्रेडिट के अंदर. सो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू रीच द एग्रीकल्चरल्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, जो छोटे स्ट्रीट वेंडर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं, उन तक पहुंचकर उनको फंडिंग और उनको इजी क्रेडिट अवेलेबल करवाने की कोशिश गवर्नमेंट ने थ्रू दैट स्कीम की है. वेरी लो इंटरेस्ट रेट, बहुत छोटे इंटरेस्ट रेट पे आपको बिजनेस करने के लिए, खेती करने के लिए पैसा मिल जाएगा. इस तरीके का दिखता है किसान क्रेडिट कार्ड. इट इज जस्ट लाइक योर एटीएम कार्ड एंड द डेबिट कार्ड, बट देयर आर सर्टेन डेफिशिएंसीज आल्सो देयर. Deficiencies in the rural bank, it's a critical evaluation, so we have to also highlight certain issues with respect to the rural banking. That banking credit or the institutional credit has invariably been tied to the collateral. मतलब कहने का मतलब क्या है, because a large section of the small and the marginal holders are often left out. Means जब गांवों तक क्रेडिट का सिस्टम पहुंचा भी, तो जो बड़े किसान, जो बड़े लोग थे, जो बड़ा व्यापारी था, उसने अपना अरेंजमेंट करके वो फंडिंग पूरा का पूरा ले लिया. देयर इज अ इंटरनल कार्टेल विद इन दिस सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिकली ही जो नीडी है उस तक सब कुछ नहीं पहुंचने देता. सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विद द बैंकिंग सिस्टम. Then there is a political populism. There is a political populism means there is a lack of strictness in the system. गवर्नमेंट जो है वो इनका कर्ज माफ कर देती हैं इतना कम इंटरेस्ट रेट पे. विदाउट इंटरेस्ट रेट जब आपको लोन दिया गया है तो लोन का पैसा तो वापस लौटाओ. बट नाउ द फार्मर्स आर एक्चुअली गेटिंग इनटू दैट पॉलिटिकल सिस्टम, और वो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से वो पैसे, लोन का पैसा लौटाते ही नहीं है. वो कहते हैं कि जब भी चुनाव आएगा हमारा जो लोन है वो तो माफ हो जाएगा. सो वो एक प्रॉब्लम है. तो रिकवरी नहीं आ रही, तो एनपीए बहुत हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्वांटम बहुत बड़ा हो रहा है. अब अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्वांटम बढ़ता चला जाएगा तो बैंकिंग सिस्टम का क्रैश होना तय है. इसी वजह से मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उस रूरल एरिया के अंदर जाके that saving culture को प्रमोट करने में फेल रहे हैं. That's the biggest problem of our rural banking system, because रूरल बैंकिंग सिस्टम में कार्टेल्स बन गए, बड़े लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया. पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की वजह से पेबैक में प्रॉब्लम्स आने लग गई, तो एनपीए बढ़ने लग गया. और कमर्शियल बैंक्स और जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अलावा प्राइवेट सेक्टर ने इंटरेस्ट नहीं लिया. ठीक है. Then after 1991 LPG policy, there is a big hit in our agricultural credit system. So this is all about the agricultural credit and the challenges related to the agricultural credit. In the next lecture, we will discuss about the certain other challenges, which is one is the rural marketing, which you can see on the screen. And also we will have a discussion about the certain solutions which may be offered in terms of the rural development. So till then, stay at home, stay safe, take care, bye bye.